ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فن ترقی کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود اسلام نے بھی فنون کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ مولا کائنات جب اپنی جانب سے کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو جو انسٹرکشن ان کو دیتے تھے، جو ہدایات مولا کائنات کی طرف سے ان کی ہوتی تھی، اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اہتموا بالفنانین، جو تمہارے دار میں اور تمہاری حکومت میں کسی بھی سلسلے کا کوئی ماہر فن ہو، اس کے لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فنان ہو کہ جو اسلامی حکومت کو اپنے فن کے ذریعے اہم ترین پیغام دے سکتا ہو، اور صرف ہمارے نظر انداز کر دینے کی بنیاد پر ایک ایسا اہم ترین انسان ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جائے اور ہم خدا کے نزدیک اس کے لیے جواب دیں۔ ہمیں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جناب سید سرفراز احمد صاحب زیدی صاحب موجود ہیں، جو نقاشی اور خطاطی میں شہرۂ آفاق ہیں، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم ان کے گھر میں تشریف فرما ہیں ہم سب، اور ان سے ان کے فن سے متعلق چند چیزیں پوچھیں گے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ اس کے بعد ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے خود سرفراز صاحب سے کہ وہ اپنا مختصر تعارف پیش کریں اور اپنے بارے میں ہم کو کچھ بتائیں کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ولادت، ان کی جائے ولادت، کہاں ان کی تعلیم ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کی ولادت کہاں ہوئی، ان کا نیٹو پلیس کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں گزارش کریں گے کہ وہ خود بتائیں۔ جناب سرفراز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ خود اپنا تعارف پیش کریے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کہاں، محل ولادت کیا ہے آپ کا، آپ کی تعلیم کے مراحل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق دو مشہور بستیوں سے ہے۔ میری ننیال شکارپور ضلع بلند شہر ہے، جہاں میں اپنے نانا کے پاس رہا اور وہیں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور میرا ددیالی تعلق جانسٹھ ضلع مظفر نگر سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ میرے نانا کے گھر میں ہوئی، اور میرے نانا بہترین خطاط بھی تھے، جن کا تھوڑا بہت اثر میرے اندر بھی خوش قسمتی سے آیا۔ یہ تعلیم میں نے وہاں 12ویں کلاس تک حاصل کی تھی۔ اس کے بعد پھر میں میرٹھ چلا آیا، وہاں میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا، اور وہیں سے میں نے اس فن میں بھی کچھ کوشش کی حاصل کرنے کی۔ میرے پاس جہاں اور مضامین تھے وہاں ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ بھی تھا۔ اتفاق سے میں علی گڑھ گھومنے کے لیے آیا تھا اپنے دوست کے یہاں۔ میرا گزر ایک اسکول سے ہوا، اس کو سٹی اسکول کہتے ہیں، مسلم یونیورسٹی سے تعلق ہے اس کا۔ وہاں جیسے ہی میں داخل ہوا، پرنسپل صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے ہی بتایا، میں نے کہا میں نے بی اے کیا ہے اور بی ایڈ کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے مضامین میں سے آرٹ بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ وہیں انہوں نے مجھے اپنے ہاں جگہ دینے کا وعدہ کیا، اور سن 1965 سے میں نے تدریسی کام شروع کیا مسلم یونیورسٹی سٹی ہائی اسکول میں۔ اب یہ تدریسی کام تو چلتا ہی رہا، لیکن ساتھ ساتھ جو میرے اندر ایک فن مصوری کے جراثیم موجود تھے وہ ابھی تک ابھرے نہیں تھے۔ اس کا ایک موقع آیا، اور وہ یہ کہ ایک رسالہ دلی سے شائع ہوتا تھا اور اب بھی شائع ہوتا ہے، اوان اردو۔ اس میں مسٹر یاسین حیدرآباد کے ایک آرٹسٹ تھے، انہوں نے ایک سیریز نکالی اللہ سے۔ اللہ کو طرح طرح سے انہوں نے لکھا، تو چونکہ مجھے بھی ایک شوق تھا خوش خط لکھنے کا، لہذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں لکھوں، میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو میں نے الحق کی ایک سیریز بنائی، اور وہ میں نے یہاں نمائش کے طور پر رکھی، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا۔
लेकिन एक इससे मेरी जो एक भूख थी वो पूरी नहीं हुई। मैंने सोचा कि कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, खत्ताती के इस सिलसिले में जो कुछ और कर सकता हूँ मैं करूँ। लिहाजा मेरी खुशकिस्मती से उसी ज़माने में सादिक़ैन साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और उनकी यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई कैनेडी हॉल में। मैं उन सादिक़ैन साहब से भी मिला और उनकी नुमाइश को भी देखा, और मैंने यहाँ से अपने आप को ये तय कर लिया कि मैं अब इसी स्कूल का तालिब इल्म बनूँगा जो सादिक़ैन का है, यानी कुरान पाक की आयतें और उनके पस मंज़र में उसका मफ़हूम। एक चीज़ की मुदाखलत चाहूँगा सरफराज साहब जी। कि फ़न्नान जो होता है, यूँ जब हम लोग अपनी ज़िंदगी के मराहिल में होते हैं, कोई अभी अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। दरअसल इंसान हर शोबे में तरक्की नहीं कर सकता, और फ़न्नान कहीं ना कहीं ऐसा होता है अपनी ज़िंदगी के लम्हे महसूस करता है कि नहीं मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कौन सा लम्हा था कि आपको लगा कि नहीं आप इस फ़न में महारत हासिल कर सकते हैं और आपको अल्लाह ने ये मर्तबा बख्शा कि आज आप शोहरे आफाक हैं, आपको इतनी इजाज़ात से नवाजा जा चुका है। कब आप पहचाने कि आपके अंदर इस चीज़, जैसे अभी आपने कहा जरासीम, आपने कब पहचाना इस चीज़ को कि आपके अंदर इस फ़न के जरासीम मौजूद है, क्योंकि एक हमारे लिए एक अहम चीज़ है ये जानना। देखिए, इसका बहुत दिलचस्प वाक़या है कि यहाँ एक रिसाला यूनिवर्सिटी से निकलता है जिसको तहज़ीबुल अखलाक के नाम से जाना जाता है, और ये सर सैयद अहमद खान साहब ने निकाला था, और इसको दोबारा सैयद हामिद साहब जो हमारे वाइस चांसलर रहे हैं उन्होंने निकाला। तो सर सैयद ये तहज़ीबुल अखलाक की जो टीम थी उसमें मुदीर के साथ साथ एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, लिहाजा मुझे उन्होंने बुलाया और मुझसे कहा कि तुम ये छोटे छोटे जो अक़वाल हैं सर सैयद के ज़रा सा वो लिखा करो, क्योंकि उन्होंने मेरा ख़त देखा था, उन्हें वो कुछ पसंद आया। लिहाजा मैंने खत्ताती जो एक रिवायती खत्ताती है वो ना शुरू करके, वो ना सीख करके खुद अपनी खत्ताती अपने स्टाइल में लिखना शुरू किया, जो यहाँ आवाम को बहुत पसंद आया, और मैं सफ़ात के सफ़ात लिखा करता था और लोग पसंद करते थे। यहीं से मैंने अपनी खत्ताती का सफ़र शुरू किया, और ये फिर रंगों की ज़बान में शुरू हो गई। तो ये जो मैं खत्ताती करता हूँ, इसमें ख़ास बात यह है कि पुरानी आयात की खत्ताती के साथ साथ उसके पस मंज़र में उसके मायना समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है कि हर फ़न मशाती चाहता है, और फ़न कितना ही अच्छा क्यों ना हो किसी इंसान के अंदर, लेकिन जब तक वो मशाती नहीं कर उसमें निखार पैदा नहीं होता। तो आपकी इस फ़न की जो मशाती हुई और इसकी जो आपने प्रैक्टिस की है, कौन रहा है आपके इस फ़न के पीछे जिसने आपको जो है इस बात का एहसास दिलाया? मतलब जी, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया जी कि मेरे अंदर जो जरासीम थे वो तो मेरे नाना के लिए जी, थे। खत्ताती जो मैंने शौक़ पैदा किया वो उन्हीं जौहर तो आपके नाना ने दिया, जी, निखार इसमें जो है वो पैदा करने निखार की- जैसे आपने फरमाया जी, वो वाकई सादिक़ैन साहब के आने से। सादिक़ैन साहब। सादिक़ैन साहब की जो खत्ताती थी उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ, ख़ास तौर से जो उनका एक ये तरीक़ा था कि वो आयत भी लिखते थे और उसके पीछे उसका मफ़हूम भी होता था। मसलन सूरह रहमान को उन्होंने पेंट किया है और हर आयत के पीछे उसका पस मंज़र मौजूद है। मैं उससे मुतासिर हुआ, लेकिन ख़ास बात यह है कि मैंने उनकी नकल नहीं की है। उनका ख़त अलग है, मेरा ख़त बिल्कुल उससे जुदा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो मैं मुतासिर हुआ हूँ वो सादिक़ैन साहब से हूँ। यूँ और भी मैंने ख़त्तात की नुमाइशें देखी हैं, जी। लेकिन मैं उनसे मुतासिर बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, फ़न के निखार के लिए जहाँ तमाम चीज़ें और तमाम और चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ बहुत हद तक माहौल, एटमॉस्फेयर भी उसको मिलना चाहिए, जो निहायत अहम चीज़ है उसके लिए। क्योंकि फ़िलहाल आप मुकीम हैं अलीगढ़ में, जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अलीगढ़ किस ज़माने में आए, और अलीगढ़ में जो कि इल्म का, अदब का, सकाफ़त का मरकज़ रहा हर ज़माने में, आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर अलीगढ़ की वो कौन सी चीज़ जिसने तशवीक़ पैदा की कि आप अलीगढ़ आए और यहाँ पर आके बस गए, जबकि आपके पास और भी ख़यालात थे, आपके पास और ऑप्शंस थे, लेकिन आपने अलीगढ़ का इंतख़ाब किया और यहाँ आकर के बसे, और मुद्दत से बहरहाल ये कि आपकी खिदमात से अलीगढ़ जो है मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं मुस्तक़बिल में होएगा।
साहब देखिए, रिस्क तो अल्लाह ताला जहाँ उतारेगा वहीं हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जाना पड़ेगा। इंसान का रिस्क अल्लाह के ऊपर है। लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पढ़ूँ लिखूँ, लेकिन वो तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन बस ये हुस्न इत्तफाक़ समझिए कि मैं एक स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ मुझको फ़ौरन ही ले लिया गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर उन्होंने क्या देखा, लेकिन वो लम्हा मेरे लिए बड़ा कीमती था कि जब मैं उनके सामने पेश हुआ और उन्होंने मेरी सब्जेक्ट्स पूछे और मुझे फ़ौरन अपने यहाँ दावत दे दी पढ़ाने के लिए, और मैं वहीं से मेरा सिलसिला पढ़ाई का शुरू हो गया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सरफराज साहब कि हमने एक कौल बहुत मशहूर खलील जिब्रान खलील का पढ़ा है कि जिस दिन इंसान अपनी कामयाबी से मुतमईन हो जाता है उस दिन उसके निखार में रुकावट आ जाती है और उस दिन के बाद से उसके तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं, मेरी तो बिल्कुल इब्तदा है। मैं तो अपने आप को बिल्कुल इसका तालिब इल्म समझता हूँ मुसव्विरी का, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ सीखने का है, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि लोग उसको अच्छी तरह से समझें, सर से न गुजर जाए, और मैं अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल नहीं समझता, बिल्कुल इब्तदाई। तो कैसे हम दरमियानी रास्ता निकालें? मतलब जैसे हम अपने छोटों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को मसलन हम इंकरेज करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर हमको बिल्कुल उनको मुतमईन कर दे कि नहीं बेटा तुमने सबसे अच्छा काम किया है, तो एक तरफ ये डर होता है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो जाएं, और दूसरी तरफ ये भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये होपलेस हो जाएं, अपनी उम्मीद को बैठें। तो कोई दरमियानी रास्ता ऐसा बताइए आप कि जिसके ज़रिए हम इंकरेज भी करें और वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी ना हो। नहीं, उसका तरीका तो यही है कि जैसे हमारे तालिब इल्म हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उनके काम की हौसला अफजाई होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो उनकी खामियां हैं उनको भी उनको बताना चाहिए, लेकिन इस अंदाज से कि उनका दिल न टूटे, जो बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी जी। अच्छा, उसके अलावा हमने जो आपकी पेंटिंग्स देखी उसमें हमने एक चीज़ महसूस की कि आपके 3 महावीर हैं, महतार जिसे कहते हैं, 3 हैं आपके। मसलन आपने कुरान पे जो है वो पेंटिंग्स की, उसके अलावा आपने अहादीस शरीफा पर पेंटिंग्स की, उर्दू अदब पे आपकी पैनी निगाह है वो देखने में आ रहा। क्या वजह है कि आपने इन तीनों चीज़ का इंतखाब किया? एक चीज़ आप और इसमें जोड़ सकते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी पर भी कुछ काम किया है। आपने यूनिवर्सिटी में भी, तो ज़ाहिर कोई बात नहीं अगर उर्दू अदब में ये चीज़ आ जाए कि यूनिवर्सिटी के उन्वान से भी आपने मसलन यूनिवर्सिटी की इमारत को मैंने कंपोज किया है। जो तरतीब आप मेरी 3 पेंटिंग्स हैं, शहर इल्म, शहर तमन्ना और चश्मे फैज़, उसमें जो तरतीब मैंने इमारत की दी है वो ऐसे है नहीं, लेकिन मैंने जो तरतीब दी है वो एक खूबसूरत कंपोजिशन बन गई है और लोग उसको पसंद करते हैं। जी। और ये मेरी जो पेंटिंग्स हैं जिसको मैं शाहकार समझता हूँ, ये इब्न सीना एकेडमी में आवेज़ा हैं और वहाँ पर लोग उसको देखते हैं। नहीं, जैसे अब मैं गुफ्तगू कर रहा था कि और भी हमने मसलन इस फ़न के माहिर को देखा तो उनकी पेंटिंग्स में कुछ बेरारवी नज़र आती है। बहुत से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ मुस्लिमीन भी ऐसे हमने देखे कि उनकी पेंटिंग्स देखने के बाद महसूस हुआ कि शायद एक मुसलमान फन्नान से ये तवक्कुआत नहीं की जा सकती। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने आपको देखा कि आपने कुरान पे फोकस किया, आपने कुरान मजीद पर, अहादीस शरीफा पर, उसके अलावा उर्दू अदब पर। तो क्या वजह है, आपको खुद कैसा लगा कि जब आपने इन चीज़ों को, वजह क्या है कि आपने इन्हीं चीज़ों का इंतखाब किया? मसलन देखिए, ये एक माहौल की बात होती है। खुदा का शुक्र है कि मेरा माहौल दीनी माहौल रहा और मैं उस माहौल में अपने इस फ़न को परवान चढ़ाता रहा, और मुझे मौक़े ऐसे मिले कि मैं अपने इन काविशों को, अपने तस्वीर की यहाँ नुमाइश कर सका। ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी में ईद मिलादुन नबी पर मेरे पास दावतनामा अब भी आता है और मेरी पेंटिंग्स वहाँ एक दिन के लिए लगाई जाती हैं, और जिससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। इसके अलावा दिल्ली में गालिब एकेडमी या ऐवान गालिब वगैरह में भी मेरी पेंटिंग्स लगाई गई हैं और वहाँ मुझे हौसला मिला। बस इसीलिए मैं इसी में खुश हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा काम जारी रहे जब तक
اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا. کچھ اجمالا نام بتا سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید میں کتنی پینٹنگس کی ہیں حدیث شریفہ پر؟ اس کا صحیح اندازہ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کام میرا سن 80 سے چل رہا ہے. 1980 سے؟ جی. لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً یہ 200 اور 300 کے بیچ میں پینٹنگس میری اب تک پہنچ چکی ہے. اور دنیا کا شاید کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر میری پینٹنگس نہ پہنچی ہوں. خاص طور سے شہر علم ایک ایسی پینٹنگ ہے جو علی برادری سے متعلق ہے. اس کے میں نے کارڈز چھپوائے اور وہ کارڈز خاص طور سے ان ممالک میں جہاں پر ایلیگرین رہتے ہیں، ایلیگرینس رہتے ہیں، وہاں پر خاص طور سے منگائے گئے اور وہاں تقسیم کیے گئے ہیں. ہر ملک میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں، گلف میں. ہر یہ ہے کہ ایک محترمہ شمشاد مارکیٹ میں دیکھی گئیں جو آسٹریلیا سے تشریف لائی تھیں اور وہ میرے کارڈ خرید کے لے کے چلی گئیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام پسند کیا جا رہا ہے اور میں اچھا ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مثلا کتنے اعزازات سے آپ کو نوازا جا چکا ہے، کتنے انعامات آپ کو مل چکے ہیں، اور اعزازات میں بھی مثلا وہ کون سا اعزاز ہے جس کے ملنے کے بعد آپ کو قدرے سکون ملا کہ آج مجھے اعزاز ملا، یا وہ لمحہ اعزاز ملتے وقت جس کو آپ نہ بھول پائے ہیں؟ سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ خود میں مطمئن ہوں کہ میں نے ایک ایسی راہ پکڑی ہے. کسی بھی فنان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنے آپ سے مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول فرما لے تو شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں. میرا مطلب قرآن خطاطی سے ہے کہ جس میں غور بھی کرنا پڑتا ہے اور جس میں کام بھی کرنا پڑتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں عبادت ہی ہے. جی جی بالکل بالکل. دوسرے یہ کہ میرا کام ازبکستان میں ایک بین الاقوامی آرٹ کمپٹیشن میں گیا تھا اور وہاں اس کو اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا. یہ سن 1998 کی بات ہے. اور اس کے علاوہ مجھے نیشنل ایوارڈز بھی ملے ہیں، خود یہاں علی گڑھ میں جامع اردو سے اور مراد آباد سے مولانا آزاد فاؤنڈیشن سے ایک قومی ایوارڈ ملا ہے. آپ کے آواز میں جی.